Assalamu alaikum dear students, welcome back to your e-lecture of first year English, and we are dealing with the poetry section. Hope you have enjoyed your Eid vacations, and now it's time to resume our lectures. I hope you all must be going through all the lectures, and today we'll be doing poem number 4. Before Eid we completed poem number 3 along with its exercises about the poet, and I told you about the reference to context in each and every aspect of the poem. So today we'll be starting poem number 4. This is page number 63. I advise you to open up your book because video might be a bit blur, so better open up your books and you'll be following me because I'll be reading line by line. This is poem number 4 with the title "Oh, Where Are You Going?" There's a question mark, and the writer of this poem or the poet is W.H. Auden. If you could recall, I've already told you that who W.H. Auden is, what is his full name. There is another poem of W.H. Auden which is included in your course, and we have discussed it in the previous lecture, and that is Nightmare. So I won't be telling you about W.H. Auden, and we'll be starting from the very text. But before starting the poem, let me tell you that you have to mark your attendance, so you have to submit the form so that we can keep the record of your lecture. And please do not forget to subscribe the channel so that you'll get notified about the daily lectures. So let's start our today's poem. Oh, where are you going? Oh, where are you going? Said reader to the writer. Now, the very first line is actually telling us that this poem is in a dialogue form. What's a dialogue? Dialogue क्या होता है बेटा? Dialogue एक conversation होती है, जो गुफ्तगू होती है, जो दो लोगों के माबैन हो रही होती है. मतलब there is one who is speaking something and there is one listener who listen to the first person and then he आंसर्स बैक. ठीक है, जैसे दो लोग बात कर रहे होते हैं, आपने एक बात की, फिर दूसरे बंदे ने आपकी बात सुनी और फिर उसको रिप्लाई किया, उसके रिप्लाई में फिर आप एक और बात कहते हैं और फिर आपको वो दूसरा बंदा रिप्लाई करता है. दैट इज डायलॉग. So this is quite interesting a poem because it is written in a dialogue form. There are two characters, they are talking to one another and we are actually listening to their talks. So हु आर दीज टू कैरेक्टर? ये दो किरदार जो आपस में बातें कर रहे हैं, ये कौन है? ये एक रीडर है और दूसरा राइडर है. सर्टेन टाइम एक फियरर है, दूसरा फारर है. एक हॉरर है, दूसरा हियरर है. ठीक है, राइडर है और रीडर है. ठीक, तो जब हम इसको पूरा पढ़ लेंगे पोएम को तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली ये तमाम जो कैरेक्टर्स हैं किसको सिंबलाइज करते हैं. ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू द राइडर. रीडर ने राइडर से कहा, राइडर मतलब जो घोड़े पे राइड करके या किसी भी चीज़ पे राइड करके कहीं जा रहा है. ठीक है, सो हेयर रीडर इज एक्चुअली referring to the people who are very much, you can say, speculative. Yes, they are very much speculative, but they are not very active, you may say, when it comes to act something, when it comes to do something. रीडर्स यहाँ पे जो सिंबलाइज किए जा रहे हैं, रीडर ऐसे लोग हैं जो बहुत फ़लसफ़े बिगाड़ते हैं. ठीक है, बहुत नॉलेज जमा करते हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, दिस एंड दैट, लेकिन जब एक्शन का टाइम आता है या कुछ करना है तो वो करते नहीं है. मतलब वो स्टेप नहीं टेक करते. ठीक है, दे डोंट टेक स्टेप. राइडर कौन है? राइडर वो है जो कुछ करने के लिए जा रहा है. अब हम देखते हैं कि क्या करने जा रहा है वो और रीडर उसको किस तरह रोक रहा है. That valley is fatal when the furnaces burn. वो कहता है, वो कहाँ तुम जा रहे हो? Where are you going? मत जाओ. ये जो वैली है, जो वैली मतलब वादी, जिस वादी में तुम जाने वाले हो, इट्स फैटल. फैटल मीन्स डेडली, लीथल, कोई ऐसी चीज़ जो जानलेवा हो, यानी कि तुम जाओगे तो मर जाओ. क्यों? क्योंकि इधर फर्नेसेस हैं. फर्नेसेस मतलब भट्टियाँ, मतलब कुछ ऐसे वोल्केनोज होंगे वहाँ पर कि जब वो जलते हैं तो उनकी गर्मी इतनी होती है या आग इतनी फैलती है कि आप जो है वो मर सकते हैं. इट्स फैटल. यॉन्डर्स द मिडन हुज ऑर्डर्स विल मेडन. और राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी मिडन्स हैं. मिडन कहते हैं बेटा जैसे देयर इज़ अ ह्यूज पाइल ऑफ वेस्टेज. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जैसे हम अपना सुएज सिस्टम में से अपना वेस्ट वाटर निकाल देते हैं या वेस्ट मटीरियल निकालते हैं, ऐसा कोई ह्यूज पाइल हो, वेदर वो डंग का हो. ठीक, तो वो कहते हैं यहाँ पे इतने बड़े बड़े मिडन हैं कि उसकी जो
उसकी जो बू है, उसकी जो बदबू है, वो आपको पागल कर देगी, विल मैडन यू। दैट गैप इज द ग्रेव वेयर द टॉल रिटर्न। और वो कहता है, रीडर कह रहा है राइडर को, ये देखो, ये जो छोटा सा तुम्हें गैप नजर आ रहा है, ये गैप नहीं है, इट्स अ ग्रेव। ये छोटा सा खड्डा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये ग्रेव है, ये एक कब्र है। वेयर द टॉल रिटर्न, जहाँ क्या है, बड़े बड़े लोग जो हैं वो पहुंच जाते हैं कब्र में, मतलब गिर जाते हैं और वो वापस जो है वो नहीं आते। Oh, second stanza I am starting. Oh, do you imagine, said fearer to the farer. Fearer मतलब the one who is actually fearful, या the one who is making you fearful, डराने वाला, to the far. Farer मतलब जो दूर देशों को जा रहा है, या जो सफर पे जाने वाला है। तो वो कहता है, डू यू इमेजिन, क्या तुमने कभी सोचा, दैट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू पास। दैट डस्क मतलब ये जो झुटपटा है शाम का, ये डिले हो जाएगा। और डिले मतलब ये होगा नहीं, तुम्हारी जो पाथ है, और वो इतनी लंबा रास्ता है कि तुम शाम शाम में वो पार नहीं कर पाओगे, रात हो जाएगी। ठीक है, दैट डस्क विल डिले योर डिलिजेंट लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग, योर फुटस्टेप फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास। Writer is saying that you look so diligent, you look so hardworking, you look so determined to pass the path, ठीक है, बट योर डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग। लेकिन आपकी जो डिटर्मिनेशन है ना, आप ये डिटर्मिनेशन डिसअपॉइंट हो जाएगी। क्यों? बिकॉज इट विल डिस्कवर द लैकिंग। लैकिंग कहते हैं किसी चीज़ का ना होना, रिसोर्सेज का ना होना, या कोई चीज़ ना होना। तो राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं, या हॉरर जो सॉरी फियरर जो है वो फारर को डरा रहा है और उसे बता रहा है कि देखिए जनाब, यहाँ आप जाएंगे तो रात हो जाएगी और डस्ट नहीं होगी, सुबह का वक्त नहीं होगा, और शाम जो है वो जल्दी बहुत मसला हो जाएगा, शाम जो है वो बहुत डिले हो जाएगी। डिले मतलब सुबह नहीं हो पाएगी, और आप रात में ही अपना पाथ जो है, या अपना रास्ता जो है वो खो देंगे, या ये जो आपकी एम्बिशन है ये सब क्या हो जाएगी, बिल्कुल वेन हो जाएगी, बिल्कुल आई मीन वो डिसअपॉइंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। योर फुट स्टेप्स फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास, और आपके जो फुट स्टेप्स हैं, ये जो भी बड़े अच्छे ग्रेनाइट पे चल रहे हैं, मतलब आपको बहुत हार्ड रास्तों पे से, बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्तों पे से गुजरना पड़ेगा। ग्रास में आप पैदल चलेंगे, ग्रेनाइट या टूटे फूटे पत्थरों में आप जो है वो पैदल जो है वो चलेंगे, नंगी ज़मीन पर, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। I'm starting the third stanza. Oh, what was that bird? Said horror to the hearer. यहाँ पे horror is personified. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ personification क्या होती है, कि human feelings को या कुछ abstract ideas को अगर ऐसे एड्रेस किया जाए कि जैसे वो इंसान हो या जिंदा चीज़ें हो, तो हम उनको क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हम ऐसी ये एक लिटरेरी डिवाइस है, हम पहले बहुत डिटेल इसको डिस्कस कर चुके। सो हेयर हॉरर इटसेल्फ, हॉरर कहते हैं खौफ को। खौफ जो है वो कह रहा है बल्कि डरा रहा है, टू द हियरर, सुनने वाले को क्या कह रहा है, ओह व्हाट वाज द बर्ड, देखो वो कैसा परिंदा वहाँ जा रहा है। डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज, ओ तुमने देखा वो जो दूर दरख्तों का झुंड है, वहाँ पे कोई अजीब व गरीब ट्विस्टेड, ट्विस्टेड कहते हैं मस्ख शुदा, कोई ना, ये जो ट्रीज़ हैं वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ जो है वो मौजूद है। ट्विस्टेड ट्रीज़ मतलब ऐसे ट्विस्ट हैं, वो मुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं, तो उनकी जो आप कह सकते हैं शाखें हैं वो ट्विस्ट हुई हुई हैं, मुड़ी हुई। ठीक, तो वो कहता है तुम देखो वहाँ पे कोई चीज़ है, कोई शेप है, पता नहीं है क्या है। बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली, और देखो तुम्हारे पीछे कोई तेज़ी से चलता हुआ आ रहा है। सॉफ्टली, सॉफ्टली मतलब उसकी आवाज़ भी नहीं आती है, तेज़ी से तुम्हारे पीछे से गुजर जाता है। स्विफ्टली मतलब तेज़ी के साथ। फिगर मतलब देर इज़ समथिंग बट वी डोंट नो दैट व्हाट दैट इज़, वो फिगर है क्या ये हमें नहीं पता, कोई इंसान है, कोई चुड़ैल है, कोई भूत है, वी डोंट नो। द स्पॉट ऑन योर स्किन इज शॉकिंग डिजीज, ओ ये जो तुम्हारे स्किन पर जो मुझे स्पॉट नज़र आ रहा है, एक छोटा सा निशान नज़र आ रहा है, कहीं ये कोई भयानक सी कोई डिजीज़ या कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस कर रहा है उसे। नाउ एक्चुअली द राइडर, फारर एंड हियरर इज आंसरिंग टू द रीडर, फियरर एंड द हॉरर। ठीक है, अभी पहले 3 स्टैंजा में जो कहने वाला था वो एक ही बंदा था, बंदा तो नहीं कहेंगे हमें, एक ही पार्टी थी, लेकिन अब जो रिप्लाई कर रहा है वो सेकंड पार्टी रिप्लाई कर रही है। सी, सेकंड पार्टिसिपेंट जो है वो इस डायलॉग के वो रिप्लाई कर रहे हैं। आउट ऑफ दिस हाउस, निकल जाओ इस घर से, सेड राइडर टू द रीडर, योर्स नेवर विल, तुम्हारी जो बात है वो कभी भी साबित नहीं होगी। दे आर लुकिंग फॉर यू, सेड हियरर टू हर, वो कह रहा है ये जो तुम मेरे लिए कह रहे हो ना,
ये सब कुछ तुम्हारे लिए, दे आर लुकिंग फॉर यू। ये जो डार्कनेस है या ये जो जितना भी तुमने मुझे डराया, खौफ पैदा किया, ये खौफ तुम्हारे अपने लिए है, ये तुम्हारे अपने अंदर है। एज ही लेफ्ट देम देयर, एज ही लेफ्ट देम देयर। और फिर उसने क्या किया, राइडर ने, वो आगे चला गया और उसने रीडर को, फियरर को और हॉरर को वहीं का वहीं छोड़ दिया। So today we have discussed the text of the poem. It's quite pithy a poem. I'll be telling you what its symbolic meanings are and what is the theme of the poem tomorrow. So we'll continue tomorrow, inshallah, or the next week. Sorry, on Monday. On Monday we'll be continuing this poem, and we'll be dealing with the exercises also. So until then, thank you very much. Take care. Allah Hafiz.